بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو ویورز، آج کا جو سوال ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ پوچھا گیا کہ قیامت کی تمام نشانیاں جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک ایک کر کے ساری نشانیاں جو ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ جوج ماجوج اور امام مہدی کا آنا باقی ہے، باقی جو ہے وہ تقریباً ہم قیامت کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کہتے ہیں، آپ بھی سنیے، سمجھنا بتائیے بھی گا چاہتا ہوں مجھے۔ اس معاملے میں، اور آپ سے بھی چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں فار این آرڈنری مسلم تھوڑا آسان ہو جائے۔ اینڈ آف ٹائم، دنیا کے حالات دیکھیں، امریکہ اس کے اندر تباہی ہے، یورپ دیکھیں تو انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، مڈل ایسٹ دیکھیں تو پہلے فلسطین یا غزہ کی صورتحال تھی، اب بیروت میں دیکھیں تو وہاں صورتحال ہے، ساؤتھ ایشیا میں آ جائیں تو کہیں سیلاب سے تباہی ہے، کہیں وائرس نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ آر وی ہیڈنگ ٹورڈز دی اینڈ آف ٹائم؟ الحمدللہ والصلاة والسلام رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ آپ کا سوال ہے کہ آر وی اینڈنگ ٹورڈز اینڈ آف ٹائم، اور اسلامی نقطہ نظریے سے کئی حدیثیں ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ دا سائنس آف دا اینڈ آف دا ورلڈ، اور کیا کہتے ہیں آخرت کے علامات، دا سائنس۔ اور اس سائنس کو دو پارٹ میں ڈیوائڈ کیا کہ مائنر سائنس اینڈ میجر سائنس، جو سائنس جو مائنر ہے اور جو میجر ہے۔ ایز فار ایز دا مائنر سائنس آر کنسرن، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کئی ہے، تو کچھ اسکالرز نے اسے کمبائن کیا، کچھ ڈیوائڈ کیا ہے۔ میں اس کے اوپر میرے فیس بک پہ کہا، میں نے مینشن کیا 87 مائنر سائنس، کچھ کہتے ہیں 60، کچھ کہتے ہیں 100، لیکن اس میں سیم ہے، کچھ لوگ کو دو کمبائن کر کے ایک ہو جاتے، کچھ کو ایک سائنس جس میں 3 پارٹ ہے اس کو 3 میں ڈیوائڈ کرتے، تو فگر از ناٹ امپورٹنٹ، لیکن کئی مائنر سائنس ہیں۔ تو میں نے میرے فیس بک پہ اس کے مائنر سائنس کو 87 میں نے کرایا، اور آل دیز آر مینشن ان صحیح حدیث اینڈ قرآن، کچھ جو ضعیف حدیث کے تو نکالا ہوں۔ تو اس کے اندر سے اکثر سائنس میں سے کچھ 60% سے زیادہ آ چکے ہو، اور 2/3 آف دی سائنس ہیو آلریڈی کم۔ ون آف دا ارلیسٹ سائنس ہے اللہ کے رسول، جو میرے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پیدائش، دیٹ از ون آف دا ارلیسٹ سائنس آف دا اینڈ آف سائنس، کیونکہ وہ آخری نبی ہے، تو وہ بھی ایک سائن ہے، اور کئی سائنس ہے۔ اور جو میجر سائنس ہے اس میں 10 ہے، اور وہ سیکوینس میں آئیں گے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، 10 اور سائنس۔ وہ 10 کون کون سے؟ وہ پہلے مائنر سائنس میں سے کئی ہے، اس میں سے اینڈ آف دا مائنر سائنس میں مہدی علیہ السلام میں میجر سائنس میں نہیں آتے، اور جو میجر سائنس ہے اس کے اندر کمنگ آف عیسیٰ علیہ السلام ہے، بعد میں اس کے اندر لائن سلائڈ، 3 لائن سلائڈ ہے، ون آفٹر دی ادر، اور پھر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کمنگ آف گوگ اینڈ مگوگ، یجوج اور ماجوج، ان کا نا آرڈر سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، آپ تو یجوج اور ماجوج کا نا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام will kill the دجال، کمنگ آف دجال ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، دجال ہے، یاجوج ماجوج ہے، 3 لائن سائڈ سے، وہ 3 ہو گئے۔ اور پھر the sun will rise from the west, then there will be a sweet wind that will kill all the others. No, sorry, وہ پہلے، اس کے پہلے، and then this is just before the end of the world is the sun will rise from the west. تو اس طریقے سے 10 علامات ہیں، تو اس لیکن میں سے کوئی بھی مائنر علامات، سائنس تو آپ نے کہا 2/3 تقریباً 2/3 سے پورے زیادہ ہو آ چکے چکے، ہیں، جی ہاں 2/3 سے زیادہ۔ زائد، تو ابھی میجر سائنس کی طرف ہم نہیں میجر پریڈکٹ کر سائنس آئیں سکتے، گے جب مائنر سائنس کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ 100% کمپلیٹ ہے، مہدی علیہ السلام اینڈ میں، تو مہدی علیہ السلام از ٹورڈ اینڈ آف دا مائنر سائنس۔ لیکن مہدی علیہ السلام کے ظہور کے متعلق ابھی کچھ کہنا بہت قبل از وقت ہے، جی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ وہ جی کب ہوگا۔ نہیں، ابھی تک تو وہ تو کئی لوگ نے کہا کہ وہی سلام ہے، لیکن وہ سب غلط ہے۔ تو لیکن یہ جو دنیا کے حالات ہیں یہ کس طرف کیا اشارہ کر رہے ہیں، ہم کس طرف کو جا رہے ہیں؟ آپ فلسطین یا جو اس وقت لبنان کی صورتحال ہے اس کو دیکھ لیں، ایون ساؤتھ ایشیا میں آ جائیں تو جو صورتحال ہے بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے اچھی صورتحال نہیں ہے، تو یہ ہماری کیا نشاندہی کرتا ہے، ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ جتنے اللہ کے رسول ایک فرماتے ہیں حدیث کے اندر کہ وقت آئے گا جو سب لوگ مسلمان پہ ٹوٹ پڑیں گے، تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت کیا مسلمان کم ہوئیں گے تعداد میں؟ تو اللہ کے رسول دینے مسلمان بہت تعداد میں رہیں گے، چھانک کی طرح، دل بی لائک فروت، بٹ they will love the dunya and the world more and will fear death.
यानी वो माल और दुनिया से मोहब्बत करेंगे और मौत से डरेंगे, कहान जो कहते हैं। तो ये हाल है मुसलमान का। आज मुसलमान तादाद में मोर देन 25% है और फॉलोइंग में तो नंबर 1 है इन द वर्ल्ड। देयर इज नो रिलीजन फॉलोड एज मच एज बाय द मुस्लिम्स। क्रिश्चियन इन तादाद कहने के लिए, बट मोस्ट ऑफ देम आर एथिस्ट, दे डोंट बिलीव जीसस, यू नो, इन जीसस क्राइस्ट एंड ऑल। सो तादाद में मुसलमान ज़्यादा है। माल के अंदर तो मुसलमान आर रिच, वी हैव गॉट द ब्लैक गोल्ड, बट येट वी फील, आप देख रहे हैं कि मुसलमान सब जगह पीटे जा रहे और कुछ नहीं कर रहे हम, बिकॉज देयर इज नो यूनिटी अमंग द मुस्लिम उम्मा। अगर मुस्लिम उम्मा यूनाइट हुए और कुरान और हदीस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह विल बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सर लेकिन मैं फ़लस्तीन में देखूँ अगर डॉक्टर साहब, तो फ़लस्तीन में मुसलमान अपनी जान कुर्बान कर रहा है, शहादत दे रहा है, तो वो मौत का खौफ तो उसे नहीं है। वो जो टैंकों के आगे बच्चे खड़े हो जाते हैं, उसको मौत का खौफ नहीं है। बैरूत के अंदर जो कुछ हमने देखा है वहाँ मौत का खौफ नहीं है। कश्मीर के अंदर वो जो बच्चा खड़ा होता है उसको खौफ नहीं है। तो लेकिन वहाँ अमन नहीं है। अमन क्यों नहीं? अमन उनके दिल में है। एक होता है एक्सटर्नल अमन, एक होता है इंटरनल अमन। आई फील इंटरनल अमन दे मोर देन अस। इंटरनल अमन मतलब एक औरत का अपना खुद का बेटा शहीद हो रहा है और वो अल्लाह से दरख्वास्त करते आप 10 बेटे दो, वो भी आपके राह में कुर्बान हो, वो तो हाइट ऑफ अमन है क्या नहीं। और जो उनको तो दर्जा मिल जाए आखिरत में, आप और हमको क्या मिल रहा है। मैं तो हर रोज़ दुआ करता हूँ, हर रोज़ दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरे माल और मेरी जान तेरे राह में कुर्बान हो जाए, हर रोज़। तो सच्चा मुसलमान मौत से डरता है, वो सच्चे मुसलमान है। तो हम ये देख रहे हैं कि अल्लाह ताला जो गाज़ा में हो रहा है वो टेस्टिंग ऑल द ह्यूमन बीइंग्स इन द वर्ल्ड, सारे इंसानों का टेस्ट है। और जो पास हो रहे वो गाज़ा के लोग, हम फेल हो रहे। अल्लाह ताला ये देखना चाहता आप क्या कर रहे गाज़ा के लिए, मैं क्या कर रहा हूँ गाज़ा के लिए, मैं कर रहा हूँ क्या नहीं, आप समझे, आप कर रहे क्या नहीं। तो अल्लाह ताला उनका रोल मेरे नज़दीक वो 95% सब पास होने वाले और हाई नंबर्स से, हम 95-99% लोग फेल होने वाले। आप समझिए ना। सर मुसलमान दुनिया जो है डॉक्टर साहब, ओवरऑल थोड़ा सा मैं आपसे अगर कॉन्टेक्स्ट लूँ, फेलियर नहीं है लीडरशिप का मुस्लिम वर्ल्ड का। जो कुछ गज़ा में हो जाए हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ लेबनान में हो जाए कुछ नहीं कर सकते, कश्मीर में हो जाए कुछ नहीं कर सकते, इराक में जो कुछ हुआ है हम कुछ नहीं कर सके, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन पता नहीं कहाँ थे वो, फिर अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है दुनिया ने मज़े से पढ़े बैठ के, वो यूएन की रेजोल्यूशन थी उन्होंने कहा करते रहो। नो सोल्यूशन मुस्लिम वर्ल्ड के पास तो हाल ही कोई नहीं है। सोल्यूशन हमारे पास है, हम उस पर अमल नहीं कर रहे। सोल्यूशन है हमारे पास, हम अमल नहीं कर रहे। और एक चीज़ है कि वी शुड फॉलो इस्लाम एज अ होल, नॉट पार्टली। तो हर इंसान, हर मुसलमान समझता है मैं इस्लाम को मुकम्मल फॉलो कर रहा हूँ। आप समझे ना, ये मुसलमान की गलत फहमी है। मैं समझता हूँ मैं कर रहा हूँ, आप समझते आप कर रहे। तो अगर फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं, वो देखना चाहिए अल्लाह के रसूल की सीरत और कुरान हदीस की रोशनी में। हर मुसलमान अपने हिसाब से अगर पूछेंगे ना, वो समझता मैं 95% तो फॉलो करता हूँ, कर रहा है सिर्फ 5%। आप समझे ना। तो जो आदमी अगर गाज़ा के लिए बात करेगी, बाकी चीज़ फॉलो, नमाज में पढ़े क्या फ़ायदा। आप समझे ना। तो देयर इज़ अ लेवल। तो आज की जो हालत है मुसलमान की, वो हालत है क्योंकि हम कुरान और हदीस से दूर हैं। कुरान की आयत ये भी है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरू मकर वल्लाहु खैरुल माकिरीन। दे प्लान एंड प्लॉटेड, कुफ़ार लोग ने प्लानिंग की और प्लॉट की, अल्लाह ने भी प्लानिंग की, अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर। अगर ये 7 अक्टूबर को जंग शुरू हुई, जिस दिन इसराइल लोग ने अगर कत्ल करना शुरू किए, अल्लाह ताला चाहता तो फ़लस्तीन को एक दिन में जिता सकता था कि नहीं। आज मुझे पूछेंगे कौन सा बेहतर है, एक दिन में जिताना कि 1 साल के बाद ये हालत है, ये बेटर है। डॉक्टर साहब लेकिन जो ये तबाही का रास्ता है मुसलमानों के लिए, हम तालीम में पीछे रह गए। आपको अभी ये जो लेबनान के अंदर या हिजबुल्लाह के ऊपर जो ब्लास्ट हुए हैं, डिवाइसेस कौन सी यूज़ कर रहे थे, वो जो इजरायली कंपनीज ने बनाई हुई हैं या उन्हीं मुल्कों के सप्लायर्स जो है उनको मुहैया कर रहे हैं, वो ब्लास्ट हुए हैं, उनके लोग भी मारे गए। टेक्नोलॉजी के लिए हम उधर देखते हैं, जंग लड़ने के लिए हथियार उधर से देखते हैं, आपको जहाज़ चाहिए बमबारी करने के लिए जहाज़ उनसे आप खरीदते हैं। तो हम खुद मुस्लिम दुनिया क्या कर रहे हैं, हमने या दीन को फॉलो नहीं किया तो या हम जहालत का शिकार हो गए, कुछ हमने गलत काम किया। नहीं किया। देखो दीन को फॉलो करने के लिए हर आदमी सेलेक्टिवली फॉलो कर रहे हैं, हर मुसलमान सेलेक्टिवली फॉलो कर रहे हैं, दीन को मुकम्मल बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं। आप समझिए ना। और हर आदमी समझता है कि मैं कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली। अगर दीन को पूरा फॉलो करना चाहिए, सब करना चाहिए, भाई नमाज भी पढ़ना चाहिए, पहले पिलर्स आते हैं, अपने दिल में तौहीद होना चाहिए। अगर दिल में तौहीद ने, नमाज ने फॉलो करा, बोलते कि मैं फ़लस्तीन के तहरीक है, क्या फ़ायदा। आप समझे ना। जिस तरीके अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये अलाउड है, इस्लाम में ये अलाउड नहीं है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसमें कई तफसील है। तो
तो हम देखते हैं कि मुसलमान कुछ चीज़ सेलेक्ट कर ले. अभी जो आदमी बात कर रहे हैं फ़िलिस्तीन को, वो बाकी चीज़ फॉलो कर रहा है क्या? अभी वो फ़िलिस्तीन जा नहीं सकता, बोलता मैं जान देने को तैयार हूँ. नमाज पढ़ने 5 टाइम मस्जिद में जा रहे हैं, जान देने को तैयार है. तो इट इज़ अ हिपोक्रेसी अकॉर्डिंग टू मी. आप समझिए ना. तो आप देखेंगे अगर आप अगर मुकम्मल तौर पे फॉलो करेंगे दीन को, आप हमेशा खुश रहेंगे. देयर इज़ नो चांस ऑफ यू बीइंग सैड एट ऑल. डॉक्टर साहब, लेकिन जो मुस्लिम दुनिया टेक्नोलॉजी के मैदान में पीछे है, अब मेडिकल साइंस में जितनी नई इन्वेंशन है वो उधर से आ रही हैं, अद्वियात नहीं बन रही हैं उधर से आ रही हैं, वायरस के लिए वैक्सीन बन रही ये हैं तो उधर से बोलना आ कि रही हैं। टेक्नोलॉजी में पीछे है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ. यस, हम और आगे हो सकते हैं. अगर आप देखेंगे 8वीं सदी में, 7वीं 8वीं सदी में मुस्लिम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. बराबर. खराबी कहाँ से शुरू हुई? खराबी शुरू हुई, हम अपने कुरान और हदीस से दूर जाने लगे. जब साहबाइन थे, ताबाइन थे, हम दुनिया पे टॉप पे थे. आप समझे ना. हम जब कुरान और हदीस को दूर करने लगे तो यह हो रहा है हमारा. आज हमारे पास पैसा है, ब्लैक गोल्ड है क्या नहीं. सबसे रिचेस्ट लोग मुसलमान हैं, नॉन मुस्लिम. वो फोर्ब्स की लिस्ट के ऊपर जाओ मत आप, वो पूरी फिक्टिशियस है. मुस्लिम आर मच रिचर. द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट फॉलोइंग कुरान एंड सुन्ना. आज के जो मुसलमान की हालत है वो हदीस में की गई है. तो मेरे नज़दीक मैं कहूँगा ये अल्लाह का प्लान है. क्यों मैं कहता हूँ कि दे आर बेटर ऑफ? क्योंकि आज की तारीख में इतने साल 75 ईयर्स हो चुके, बहुत से गैर मुसलमान को ये लगता था कि फ़लस्तीन गलत है. 90% लोग को, गैर मुस्लिम की बात कर रहा हूँ मैं, और 10% शायद कहते थे फ़लस्तीन सही है. 90% कहती थी इजराइल सही है. अगर एक दिन में फ़लस्तीन जीत जाती थी, इन लोग कंटिन्यू होते थे अपने ख्यालात पे. आज ये हिस्ट्री में पहली बार है कि जेनोसाइड इज बीइंग लाइफ टेलिंग. माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका बहुत ही अच्छा जो है वो जवाब दिया और बड़ा तसल्ली बख्श था. तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. और अगर आप इस मालूमात को आगे तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मालूमात वो है, इल्म वो है जो आप सीखें भी और दूसरों को सिखाएं भी. जज़ाकल्लाह. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.